Great morning, everyone. Am I audible? सबको आवाज आ रही है? Yes. Okay. Ma'am. So, how is everyone coming out of heat wave? Very nice. Feeling nice after rains, right? Yes. Okay. Today's session is going to be really interesting, and I hope everyone has, are surrounded by people whose triglycerides, cholesterol, and everything. मतलब वो lipid profile जो हम बोलते हैं ना, that is going bad. Okay, and they are taking some kind of chemical treatments, right? Allopathic medicines. So today, in today's session, we will be discussing on how we can overcome if there is increased cholesterol levels naturally, and what are the one second Yes, so today we are going to start talking on, and these are the natural remedy series, we can say, wherein like different major and severe illnesses, how they can be controlled and how they can be curbed, how they can be overcome with the help of natural food medicines through foods, that we will be discussing in these series. So the first topic I thought to take is let's talk on cholesterol, right? Because now the prevalence and incidence of increasing cholesterol is being like it's statistics, if we see, it's increasing like anything. If we compare the blood cholesterol levels of people today and blood cholesterol levels of people 10 years back, there is a huge gap. There is a huge gap nowadays. Like after 35s we have to do the lipid profile, get our lipid profiles done. Initially it was like 40 45s maybe सबका it used to be two optimum levels. लेकिन अभी जो है ना, due to stressors, due to unhealthy eating patterns, due to not knowing about the correct methods of consumption of different foods, correct, see, people are becoming aware, there is no doubt, but the awareness is not complete, I would say. There are like things which people are not knowing. Okay, as usual, I give an example of protein diet. It's the same if we talk in context of fats. Now fats need not to be taken into diet, or they should be restricted into diet, but how much of fats should be restricted, that people are not aware of. And here comes our role in creating this awareness. And today I'll be talking on the cholesterol, like exactly what cholesterol is. Okay, so everybody knows that it is a kind of fat, and it causes like if it is increased, it causes heart attack, ye wo, it causes health issues, blockage of arteries, obesity cause kar sakta hai. So all these things are very common, but today I'll be elaborating more on reading all of the blood reports. Okay, so how you can relate these blood reports to a dietary counseling, that is more important, because कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, बट उसका कौन सा पैरामीटर बढ़ गया है, this if we understand, and that parameter is derived from which kind of foods, which kind of lifestyle, if you know that, then it becomes easy to plan step by step strategies to lower the cholesterol levels. Now eating healthy foods is obviously going to give good results, right? मतलब पेशेंट्स में मे बी कोलेस्ट्रॉल उनका कम हो जाएगा, बाकी के पैरामीटर्स उनके नॉर्मल हो जाएंगे, बट there should be a consistency. But if a client comes to you with increased cholesterol levels, if you follow these steps which I'm going to tell you today, definitely 100% you can treat patients with increased cholesterol levels. Okay, because there is no other option. Is there any other option apart from the allopathic medicines, which has to be taken years and years? मतलब सालों साल वो मेडिसिन लेने ही पड़ते हैं, नहीं तो वो बंद कर दिए, then cholesterol will increase. Is there any other alternative to decrease cholesterol? There is no other alternative, right? You have to focus more on the lifestyle changes of the client. See, there would be some remedies coming out of homeopathy, coming out of ayurveda, but these will be complementary to whatever you are prescribing through your diet.
Okay, always remember that. So if you are going to follow these steps in curbing the levels of cholesterol in a patient, then 100% you are going to get really good results. Okay, so let us start with what cholesterol is, where it is derived from, what are the other sources apart from fats that we get cholesterol, increased cholesterol in our bloods. So वो सारी चीजें, and how cholesterol can be treated, like excess cholesterol can be brought to normal with the help of natural remedies. Okay, that we will be discussing in today's session. So let me just know if you can, if you are able to see the screen. Okay, 1 second. Okay, you are able to see the PPT nice and clear? Yes. Everyone? Okay. Yes, ma'am. So, natural healing methods, chapter 1, natural healing methods to reduce cholesterol. This is our topic for today. Okay. So, what is cholesterol basically? So, if you see, cholesterol is a kind of fat. It is a waxy substance. Why are we so much scared and why are we so much feared of cholesterol? Because it is a waxy substance. It is a sticky substance that helps body to make our cell membranes and vitamin D. Okay, so this I am revealing it to you now itself. Basically, cholesterol, ये हर एक क्लास में मैं हमेशा ही बताती हूँ कि कोलेस्ट्रॉल को जितना बुरा माना गया है उसके गुड इफेक्ट्स भी बॉडी पर है. बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी, अभी यहाँ पे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स दे नो, formation of vitamin D, it is helped only with the it happens only with the help of cholesterol. अगर बॉडी स्किन के बीनीथ जो कोलेस्ट्रॉल की लेयर है वो अगर नहीं रहती है तो देन योर बॉडी विल नॉट बी एबल टू प्रिपेयर विटामिन डी ऑफ इट्स ओन. सो मेडिसिन से तो आप ले सकते हो लेकिन खुद का विटामिन डी बनना भी जरूरी है कि जिसको कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है. एंड द सेकेंड थिंग इज हमारे जो सेल मेम्ब्रेन्स है, ओके, अच्छा ओके, हमारे जो सेल मेम्ब्रेन्स है, ऑल द सेल मेम्ब्रेन्स मतलब हर एक सेल की जो मेम्ब्रेन रहेगी, आउटर लेयर ऑफ द सेल, दैट इज मेड अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन दे विल कम टुगेदर एंड मेक दैट सेल मेम्ब्रेन. ये काम और कोई नहीं कर सकता है. So if you see, there are millions and trillions of cells in our body. So every cell is requiring cholesterol to form its membrane, to keep itself intact. Otherwise cell हमारी काम function नहीं कर पाएगी. It should be enclosed cell, right? सारी cell organelles उसमें enclosed चाहिए. तो इसके लिए cholesterol is very very important. Okay, these are the two important and very very important functions of cholesterol. So people who are going on very low fat diet or very zero oil or zero fat diet, उनके लिए it is a big risk factor. They can suffer from vitamin D deficiency or they can also suffer from various skin ailments और बहुत सारे fat soluble vitamin deficiency से वो suffer हो सकते हैं. Okay, somebody is unmute. Can you please mute yourself? Please mute. Okay. So now, what is cholesterol? Cholesterol exists in our body in two forms. Okay, that is HDL and LDL. So HDL is high density lipoprotein. Okay, so not going into much detail, I can tell you here is that high density lipoproteins, they are good for our body. They will act as antioxidants. Okay. And low density lipoproteins, they will be circulating in blood and they will increase the viscosity of blood, the thickness of blood. Okay, हमारा blood का pH, हाँ उसकी liquidity, okay, fluidity we can say, the rate at which it flows, it should be maintained properly. Otherwise it can cause pressure on heart. Okay, so जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, okay, जिन लोगों का LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, they are at a more risk of developing heart hypertension. Hypertension क्यों? क्योंकि ब्लड अभी ज्यादा विस्कस हो रहा है, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ रही है, थिकनेस बढ़ रही है ब्लड की. सो हार्ट हैज टू पंप इट वेरी फास्ट. सो
the pumping action of heart, it causes blood to flow in a very fast, मतलब बहुत ज्यादा फास्ट ब्लड फ्लो होता है कि जिसकी वजह से उन लोगों में हाइपरटेंशन डेवलप होता है. ओके, हाइपरटेंशन एंड कोलेस्ट्रॉल का ये कनेक्शन है. सो व्हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बाद में लोगों में हाइपरटेंशन हो सकता है. इसके और भी अलग अलग रीजंस है कि व्हाई मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से बॉडी में और क्या ये हो सकते हैं, इश्यूज, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. बट दिस इज द मेजर एंड वन ऑफ द वेरी कंसर्न, मतलब इसका कंसर्न बहुत सारे लोगों को रहता है कि एट एन अर्ली एज हाउ डिड दे डेवलप हाइपरटेंशन. So stress factor and everything, that is all there, but this is one of the reason of increasing hypertension at an early age. Okay, so LDL cholesterol, usually when there is increased cholesterol in blood, usually people want to run away and want to get it treated. Okay, so what needs to be treated when cholesterol is increased? That is the low density lipoprotein. उसके वैल्यूज जो है ना वो कम होना जरूरी है. कोलेस्ट्रॉल जब बॉडी में बढ़ जाता है तो अलग अलग चीजें, जैसे हार्ट पे प्रेशर आता है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है, फिर हार्ट के आर्टरीज में ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, देन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड बढ़ने की वजह से द न्यूट्रिएंट का फ्लो जो है टुवर्ड्स सेल, इट डज नॉट हैपन इफेक्टिवली. दैट इज व्हाई पेशेंट्स में बहुत ज्यादा मतलब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो है ना वो दिख सकती है, बहुत ज्यादा मायल्जिया दिख सकता है, लाइक मसल पेन, सेल्स आर नॉट गेटिंग इनफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो इसकी वजह से ये सारे उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इफ देयर इज इंक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड. ओके, सो नाउ एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज डेंजरस. जस्ट नाउ एज आई सेड कि कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है ही है, 100% इट इज इंपॉर्टेंट, बट इफ इट इज इन एक्सेस then it becomes dangerous. Okay, so what it can cause if it is in excess? Okay, the first thing is हम लोग हमेशा हार्ट की बात सोचते हैं. जब कोलेस्ट्रॉल जब आता है तो we are more concerned about the health of heart, though it is correct, 100% it is correct, but there are some important other blood vessels which also need to be assessed and they also need to be taken into consideration. Okay, for example, अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो एग्जैक्टली पैथोलॉजी क्या होती है? अथेरोस्क्लेरोसिस जिसको हम लोग बोलते हैं कि आर्टरीज में फैट्स जमा होने के कारण हार्ट में ब्लॉकेजेस आ गए, है ना. तो वो ब्लॉकेजेस मतलब क्या है एग्जैक्टली, वो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी. सो एलडीएल जो है ना, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हमारी जो आर्टरीज है उसका फ्लो कैसा है? इट इज नॉट कि एक सीधी लाइक पाइप है और उसमें से फ्लो हो रहा है ना ब्लड. These arteries, they are like twisted and turned depending on like अभी हाथ को सप्लाई करना है तो अगेन आर्टरी गेट्स ट्विस्टेड, हार्ट को सप्लाई करना है अगेन आर्टरी गेट्स ट्विस्टेड, ब्रेन को सप्लाई करना है उसको अगेन उसका पाथ जो है इट इज नॉट इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन. देयर आर कर्व्स इनटू दोज आर्टरीज. जहां जहां कर्वेचर्स रहेंगे ना आर्टरी में, वहां ये जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन वाला कोलेस्ट्रॉल है, ये उस कर्वेचर को हिट करता है. इट हिट्स, मैकेनिकल हिटिंग जो प्रोसेस होती है ना, वो प्रोसेस वहां पे होती है, जिसकी वजह से ना वो वेसल्स जो है, हमारी ब्लड वेसल्स जो है, उनको इंजुरी होती है. और हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? जब भी इंजुरी हो जाए तो इंजुरी को हील करने के लिए वहां पे प्लेटलेट्स आना शुरू हो जाते हैं, मतलब डिफेंसिव मैकेनिज्म है, वहां पे क्लॉट फॉर्म होना शुरू हो जाता है. तो यहाँ भी यही चीज होती है. अभी बॉडी एंड आवर ब्रेन डजंट नो कि यहाँ पे अगर ये चीज हो जाए तो इट इज अ रिस्क फैक्टर. ठीक है, सो व्हाट इज द प्रिवेंटिव मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी? ये उस इंजर्ड जो यहाँ पे इंजुरी हुई है वहां पे उस चीज को हील करने की कोशिश करेगी. तो वहां पे सारे सेल्स आ जाएंगे, सारे जो चीजें हैं वो सारी चीजें वहां पे चिपकती रहेंगी एंड अ डे विल कम व्हेन दिस क्लॉट इट इंक्रीजेस सो मच. अभी यहाँ पे इसको क्लॉट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग उसको अथेरोमा बोलते हैं. तो अगर याद रहता है तो रहने दो, नहीं तो छोड़ दो इस वर्ड को. अथेरोमा मतलब क्या कि वहां पे लिपिड लेयर रहेगी और उसके अराउंड सारे प्लेटलेट सेल्स ये सारे जमा होते जाएंगे. सो बेसिकली ये जो क्लॉट या फिर ये जो ऑब्स्ट्रक्शन बन जाता है, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम, दैट इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल. ओके,
सो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की वजह से ये होता है एंड ये ऑब्स्ट्रक्शन है, इसीलिए क्या होता है ना कि ब्लड में देखो, अभी यहाँ पे आप इस इमेज में भी देख पा रहे हो कि यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स जा रही है, लेकिन उनको वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है ना, तो ऐसे ही क्या होता है ना, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बाकी के सेल्स भी वहां पे चिपकना शुरू हो जाता है एंड ओनली फ्यू सेल्स दे ट्रैवल टू दी कंसर्न ऑर्गन। ठीक है, तो ये जब क्लॉट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एंड इवेंचुअली क्या हो जाता है कि वो इतना ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है कि नो मोर ब्लड पासिस थ्रू दैट आर्टरी। ठीक है, और अगर ये हार्ट में है तो हार्ट का फंक्शन तो रुक नहीं सकता है। चलो हाथ का फंक्शन रुक जाएगा, पैर का फंक्शन रुक जाएगा, तो द लाइफ इज नॉट एट रिस्क, राइट। लेकिन हार्ट का अगर पंपिंग एक्शन अगर स्टॉप हो गया तो इट इज एज गुड एज द पर्सन इज डेड, राइट। तो क्या होता है ना कि हार्ट व्हेन इट ट्राइज टू स्क्वीज, जब ये स्क्वीज होने की कोशिश करता है तो उसको ऑक्सीजन सप्लाई कम होने के कारण वहां पे पेन्स होते हैं एंड उन पेन्स को हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है कि अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है, मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन वाला कोलेस्ट्रॉल अगर ब्लड में बढ़ता है तो। ओके, सो अच्छा, और एक चीज है कि हमें अभी ये ऑब्स्ट्रक्शन जो है ये सिर्फ हार्ट में होता है क्या? नो, इट ऑल्सो हैपन्स इनटू ब्रेन, कि जिसको हम लोग ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। बट यूजुअली व्हाई हार्ट इज एट मोर रिस्क ऑफ डिपोजिशन ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, दैट इज बिकॉज कि जैसे मैंने अभी आपको बोला कि जिन आर्टरीज में ज्यादा कॉन्वुलेशंस होंगे ना, ज्यादा टर्न्स एंड ट्विस्ट ज्यादा होंगे, दोज आर्टरीज आर मोर प्रोन टू डेवलप दिस एथेरोमा। और वो हार्ट में बहुत ज्यादा है। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है, फीस जैसा ऑर्गन है, और उस फीस के अराउंड ये आर्टरीज पूरी टर्न हो रही है हार्ट को ब्लड सप्लाई होने के लिए, राइट। तो वहां पे ब्लॉकेजेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसीलिए पीपल एक्सपीरियंस हार्ट अटैक्स when there is raised cholesterol or raised triglycerides for a longer period of time. Okay, now why does cholesterol increase in our blood? ठीक है, हम लोग अभी टॉपिक में मेन आएंगे, बट अभी ये देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि जब हम लोग इसको जड़ से बोलते हैं ना, कि जब हमें इसकी बेसिक पैथोलॉजी समझ में आएगी कि एग्जैक्टली ये चीज हो क्यों रही है बॉडी में, तब जाके इसका निवारण हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ओके, सो कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में बढ़ता क्यों है? ओके, तो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल की बात हो रही है यहाँ पे, तो थ्रू डाइट। ओके, सो थ्रू डाइट अगर मैं यहाँ आपको बोलूंगी तो यू विल फील कि ज्यादा फैटी फूड, ज्यादा तली हुई चीजें खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, दैट इज वन रीजन। ठीक है, another reason is if there is increase sugar intake, like free sugar intake in diet. ओके, अगर आप ज्यादा मीठी चीजें खाते हो, ज्यादा स्वीट्स खाते
prepared at home also, through eating sweets outside, through eating bakery items. Bakery items also contain high glycemic index carbohydrates, right? मैदा ही होता है ना उसमें, तो these are the simple carbs. तो उसकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है. Okay, these are the two important sources through which cholesterol can increase in our body. Now, what is the second source? Second main source is it is produced in liver. हमारा जो लीवर होता है ना, एवरी डे इररिस्पेक्टिव आप डाइट में कोलेस्ट्रॉल लो या ना लो, ओके, आपका लीवर जो है ना, ये इट रिलीजेस 2 मिलीग्राम्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल एवरी डे इनटू सर्कुलेशन, एवरी डे. ये क्यों होता है? सो इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? सो बेसिकली इट इज अ गुड थिंग. व्हाई इट इज अ गुड थिंग? बिकॉज अगर आपने, इफ यू गो ऑन अ वेरी लो फैट डाइट, ठीक है, आपने डाइट में फैट्स बहुत रेस्ट्रिक्ट कर लिए, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो आपका विटामिन डी बनना है, जो आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के बाकी के फंक्शन जैसे सेल मेम्ब्रेन को बनना है, तो वो जो लीवर से आया हुआ 2 मिलीग्राम्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल है, दैट इज गोइंग टू हेल्प इन ऑल दीज फंक्शंस. ओके, अगर लीवर से कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं आता तो सेल्स लिटरली वुड कोलैप्स. सेल का स्ट्रक्चर मतलब एक बार रेड ब्लड सेल गई तो गई, वापस रेड ब्लड सेल अभी नहीं बनने वाली. वैसे ही हमारे बाकी के ऑर्गन्स के सेल्स भी हैं कि विच आर गेटिंग रीप्लेनिश्ड आफ्टर एवरी 21 डेज, राइट? तो ये अगर सेल्स गए तो देन द फॉर्मेशन ऑफ दैट सेल इज गोइंग टू रिक्वायर कोलेस्ट्रॉल. तो उस फंक्शन को मेंटेन रखने के लिए भगवान ने हमें वो एक सोर्स दिया है कि लीवर खुद ही कोलेस्ट्रॉल बनाएगा जो बॉडी के लिए जरूरत है. बट this cholesterol is not sufficient. So through diet we should be taking oils in adequate quantities. Adequate मतलब not into excess. अगर वो ज्यादा हो जाते हैं तो उसके बॉडी के लिए बहुत दुष्परिणाम है कि जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया. ओके, नाउ unnatural methods like smoking, alcohol etc. अल्कोहल का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है, स्मोकिंग एंड अल्कोहल. इस चीज से क्या होता है, स्मोकिंग एंड अल्कोहल से हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में जो टॉक्सिन्स है वो ज्यादा बढ़ते हैं. ये टॉक्सिन्स बढ़ने के कारण ये जो कोलेस्ट्रॉल है बॉडी का, इट बिकम्स अ फेवरेबल मीडियम यू कैन से फॉर कोलेस्ट्रॉल टू इंक्रीज. तो उसकी अगेन बहुत डेप्थ में पैथोलॉजी है, सो वी विल नॉट डिस्कस इनटू मच डिटेल, लेकिन ये चीजें आपको याद रखनी है. व्हाई कोलेस्ट्रॉल इंक्रीजेस इन ब्लड? थ्रू कंजम्पशन ऑफ सैचुरेटेड फैट्स या फिर फ्री शुगर्स अगर ली तो लीवर जो खुद कोलेस्ट्रॉल बनाता है. एंड थर्ड थिंग इज अगर स्मोकिंग एंड अल्कोहल एक्सेस में लिया जाए तो. नाउ लीवर जो है ना 2 मिलीग्राम्स कोलेस्ट्रॉल बनाता है. दिस इज द नेचुरल वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू कि रोज ये इतना ही कोलेस्ट्रॉल बनाएगा. बट थिंक ऑफ पीपल हु आर हैविंग फैटी लीवर. ओके, अगर किसी को फैटी लीवर है ग्रेड 1 2 3 होगा तो फिर उनको मतलब दे हैव टू कम बैक टू देयर नॉर्मल ईटिंग पैटर्न, अदरवाइज उनका लीवर गया. ओके, अगर ग्रेड 1 एंड 2 कोलेस्ट्रॉल है तो उनको डेफिनेटली हम लोग सिर्फ एंड सिर्फ डाइट से उनको रिवर्स कर सकते हैं उन लोगों को. ओके, लेकिन इस प्रोसेस में अगर ग्रेड 1 फैटी लीवर है, ग्रेड 2 फैटी लीवर है, सो वो जो 2 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल लीवर यूजुअली रिलीज करता है, इन सिनेरियोज में, इन केसेस में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल इट विल बी थ्रोन आउट. दैट इज लीवर इज डिटॉक्सिफाइंग इटसेल्फ बाय रिलीजिंग मोर एंड मोर कोलेस्ट्रॉल इनटू द सर्कुलेशन. इससे क्या हो जाता है ना कि लीवर का कोलेस्ट्रॉल कम होने में तो हेल्प होती है, लेकिन ब्लड का कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है. सो दैट इज व्हाई फैटी लीवर है इसलिए शांत रहना. मतलब अभी फैटी लीवर है लेकिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नॉर्मल है, ठीक है, आप कभी भी नहीं बता सकते कि मतलब कब जाके ब्लड कोलेस्ट्रॉल उस पेशेंट के बढ़ सकते हैं, वो कभी भी बढ़ सकते हैं. ओके, सो दीज आर दी सोर्सेस ऑफ हाउ द कोलेस्ट्रॉल इज इंक्रीज्ड इन आवर बॉडी. नाउ हाउ डू वी मेजर कोलेस्ट्रॉल? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब आप ब्लड रिपोर्ट्स देखोगे कोलेस्ट्रॉल के, so you will find these 4 to 5 parameters. अभी VLDL यहाँ पे mention नहीं है, but VLDL also is shown in the this thing in that report. Now total cholesterol it should be less than 200. Less than 200 क्यों? क्योंकि 0 to 200 में कोई भी वैल्यू रहेगी ना
तो दैट इज गोइंग टू हेल्प फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स. अगर कोलेस्ट्रॉल इतना बुरा होता, ओके, तो ये 200 तक की भी जरूरत नहीं होती बॉडी को, राइट? सो इट शुड बी लेस देन 200 एंड इट हैज टू बी लेस देन 200. अगर 200 मतलब कुछ भी कोलेस्ट्रॉल नहीं है ब्लड में, देन ऑल्सो इट इज अ प्रॉब्लम. अगर 200 से ज्यादा है, देन ऑल्सो इट इज अ प्रॉब्लम. सो द लेवल शुड बी बिटवीन 0 to 200. 200 से आगे कोलेस्ट्रॉल आइडियली नहीं होना चाहिए. यूजुअली मैं पेशेंट्स को क्या बोलती हूँ, ट्राई एंड मेंटेन योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बिलो 170, ठीक है, जिनके बड़े हुए हैं, बिकॉज देन वी हैव दैट 30 मिलीग्राम्स पर डीएल का गैप, कि जिसमें अभी उसने कुछ खाया, कुछ मतलब अनवांटेड चीजें लिए, घूमने गए हैं, तो द बॉडी विल बी एबल टू हैव दैट स्पेस ऑफ अकोमोडेटिंग मोर कोलेस्ट्रॉल इनटू इट. तो ऑलवेज जो हेल्दियर लाइफस्टाइल है, इट विल ऑलवेज एक्सेप्ट कोलेस्ट्रॉल बिलो 170, ओके, बट आइडियली 200 से कम जो है, इट इज अ नॉर्मल वैल्यू. अभी एलडीएल, दैट इज लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इट शुड बी लेस देन 100 mg पर डीएल, ओके. सो इन 200 में से कुछ जो है वो एलडीएल होते हैं, एलडीएल लाइपोप्रोटीन, दैट इज लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एंड कुछ होते हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं. सो ट्राइग्लिसराइड्स भी 100 से नीचे चाहिए एंड एलडीएल भी 100 से नीचे चाहिए, ओके. नाउ जब हम फूड्स को लेकर बात करते हैं, ठीक है, एलडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड्स, कौन से सिनारियो में डायरेक्टली आपको एलडीएल कोलेस्ट्रॉल डायरेक्टली फूड से मिलेगा? सो दीज आर the fats or the fatty foods, that the street foods that the client is taking, ठीक है, फ्राइड, तला हुआ वड़ा पाव, तला हुआ समोसा, ये ऑयल बार बार यूज हो रहा है. सो इन दोज केसेस यूजुअली एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ता है, ओके. ट्राइग्लिसराइड्स इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू अल्कोहल, स्मोकिंग एंड इनटेक ऑफ मोर ऑफ शुगरी डाइट, ठीक है, बहुत ज्यादा बेकरी आइटम्स खा रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा शुगर, कैंडीज, पेस्ट्रीज, जैम्स, जेलीज बहुत ज्यादा डाइट में है, ठीक है, तो उन लोगों में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ेंगे. तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है कि एलडीएल कब बढ़ेगा और ट्राइग्लिसराइड्स कब बढ़ेंगे. कोई कोई लोगों में ना क्या होता है कि टोटल कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा रेज होता है, एलडीएल एकदम परफेक्टली नॉर्मल, देन एचडीएल कुछ थोड़ा बहुत कम रहेगा, एंड ट्राइग्लिसराइड्स 200-300 क्रॉस कर चुका है. उन पेशेंट्स में क्यों ऐसा होगा? what do you think would be the reason for this? Yes, somebody who knows the answer, you can speak out, because if I exit this, then the recording stop हो जाएगा मेरा. Yes, ज्यादा मीठा खाने की वजह से. मीठा खाने की वजह से ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, ओके. और बेकरी आइटम्स ज्यादा खाने की वजह से. बेकरी आइटम्स ज्यादा खाने की वजह से, और maybe that patient is a chronic alcoholic, maybe that patient is chronic tobacco chewer, ठीक है, टोबैको की वजह से भी ट्राइग्लिसराइड्स बहुत बढ़ते हैं. मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं ना, दे आर लीन थिन, ब्लड मतलब कोलेस्ट्रॉल उनका टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, एलडीएल इज परफेक्टली नॉर्मल, वीएलडीएल इज नॉर्मल, एचडीएल भी बॉर्डर लाइन पे है, तो इट इज ऑलमोस्ट नॉर्मल, लेकिन ट्राइग्लिसराइड्स 300 से आगे 400 तक भी ट्राइग्लिसराइड्स उनमें पाए जाते हैं. The people who do not even eat sweets, who do not eat outside food, who is on natural intake of diet, ठीक है, and chewing tobacco more than like 5 to 6 times a day or even more than that. कोई लोग एक पैकेट पूरा टोबैको च्यू करते हैं दिन में, okay. So in those clients there are more chances of increasing triglycerides in their blood, okay. Now जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये जो ट्राइग्लिसराइड्स है ये क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, वीएलडीएल, ये सब मतलब ये दीज आर एग्जैक्टली नॉट द डिफरेंट एंटिटीज, लेकिन इनका जो केमिकल फॉर्मूला है वो डेफिनेटली अलग अलग है. कोलेस्ट्रॉल जो है वो एलडीएल के फॉर्म में हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है. जो ट्राइग्लिसराइड्स है उनका कन्वर्जन जब एलडीएल में होता है तो वो हमारे बॉडी के लिए डेंजरस है. ट्राइग्लिसराइड्स डायरेक्टली हमारे बॉडी में कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उनका कन्वर्जन भी एलडीएल में होता है, उसके लिए वो घातक है, एंड वो होता ही है बिकॉज दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स. जैसे प्रोटीन बनना है बॉडी में तो अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स एक साथ आकर प्रोटीन बनता है ना, तो वैसे ही ट्राइग्लिसराइड्स एक साथ आकर कोलेस्ट्रॉल बनता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, विच इज डेंजरस, ओके. अगर एलडीएल आपका अभी ट्राइग्लिसराइड्स 300 हो गए फिर भी पेशेंट सर्वाइव कर सकता है,
LDL अगर 300 पे पहुंचे ना, उसको डेफिनेटली हार्ट अटैक आप सोचो कि अभी आने ही वाला है. ओके, सो इट इज मतलब ये जो पैरामीटर्स जब आप पढ़ोगे ना, तो यू शुड नो द सिवियरिटी ऑफ देयर इलनेस. ठीक है, अगर किसी का LDL 300 तक है एंड आप बोलोगे कि नहीं मैं डाइट से पूरा ठीक कर दूंगा, कर दूंगी, तो देन इट इज अ रिस्क टेकिंग कंडीशन. ओके, आपको बिकॉज टू क्लेंस द बॉडी, टू थ्रो आउट दैट LDL, okay, or get it utilized or get it eliminated from body, that person is going to require at least 2 to 3 months time. okay, तो उतना टाइम शायद से उन पेशेंट्स में नहीं है. एंड दिस LDL इज कहीं पे अगर क्लॉट फॉर्मेशन की प्रोसेस शुरू हो गई ना, तो एनी अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज दैट पेशेंट इज डूइंग, एनी अमाउंट ऑफ गुड डाइट दैट पेशेंट इज टेकिंग, उस प्रोसेस को रोकना बहुत मुश्किल होता है. ओके, वैसे ट्राइग्लिसराइड्स हैं जो विस्कोसिटी तो बढ़ाएंगे लेकिन इतना इंजुरी नहीं करते हैं जितना LDL हमारे बॉडी के लिए करते हैं. तो जब सिवियरिटी चीजों के आपको ध्यान में आ जाएंगी, तब आपको पता चलेगा कि लोग कौन से क्लाइंट को किस तरीके से हैंडल करना है. ओके, सिर्फ हम लोगों का भी अभी वैसे भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि फूड्स विच आर यूजफुल इन कंट्रोलिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, लेकिन हर एक क्लाइंट में वो फॉर्मूला मैच होगा या किस तरीके से वो मैच होगा, वो आपको खुद को एनालाइज करना है. ठीक है, घर में भी अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल रेज्ड है तो आप प्रॉपर उसके रिपोर्ट पढ़ो. सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसके लिए आपने डाइट शुरू कर दिया, इट इज ओके, डाइट इज समहाउ गोइंग टू हेल्प दैट क्लाइंट. लेकिन अगर उनमें रिस्क फैक्टर है कि हार्ट में भी पोस्ट सर्जरी है, हार्ट अटैक ऑलरेडी आके गया है, स्टेंटिंग किया हुआ है और अभी उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, LDL बढ़ा हुआ है, तो देन इट इज अ रिस्क फैक्टर. तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा क्लाइंट अपना है, कौन सा क्लाइंट हमें दूसरे पैथी के साथ में उसको ट्रीट करना है. दो डेफिनेटली इट इज श्योर कि आप कोई भी मतलब एलोपैथिक मेडिसिन, इट इज नॉट दी एंड रेमेडी फॉर डिक्रीजिंग कोलेस्ट्रॉल, इट इज अ टेम्पररी मेडिसिन कि जो आपके क्लाइंट्स लेंगे उससे वो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहने वाला है, बट इट इज नॉट द एंड ट्रीटमेंट. आखिर में तो पेशेंट को नेचुरल ईटिंग पैटर्न्स पे ही आना है, उनका हेल्दी लाइफस्टाइल ही उनको हेल्प करने वाला है इन अ लॉन्ग रन. तो अलोंग विद दिस they need to have medicines for few days and then stop those medicines and then recover themselves with the help of these natural home remedies. इसमें ऐसे भी होता है कि कभी कभी कोलेस्ट्रॉल 250 हो गया, LDL माइल्डली रेज्ड है, HDL थोड़ा बहुत कम है, ट्राइग्लिसराइड्स माइल्डली रेज्ड है. उन केसेस में आपको लीवर प्रोफाइल करना है. यू हैव टू सी द कंडीशन ऑफ लीवर. अगर लीवर ग्रेड 2 ग्रेड 3 फैटी लीवर है, ओके, देन ऑल्सो डोंट टेक अ रिस्क. You have to see if the liver is grade 1 grade 2 borderline fatty liver है और उसके साथ में ये increased values है, तो definitely अगर if that patient you see is very committed to follow your guidelines, then 100% उनको वो help हो जाएगी and it really works. Okay, and within like few months only everything gets reversed. Okay, yes. Now coming to the treatment. So everybody got it, how cholesterol, you have to assess cholesterol levels, how cholesterol is helping our body, what are the demerits of increased cholesterol in our blood. Yes, everyone with me? Okay, yes. Now we'll see the treatment for cholesterol. Okay, treatment. It is very, very simple if you plan like strategically using some strategies. Okay, मतलब लेमन बॉडी के लिए डिटॉक्स है या फिर कोई और इंग्रेडिएंट बॉडी के लिए डिटॉक्स है, तो चलो वो बढ़ा दो, ये करो वो करो. यू हैव टू अप्लाई एन इंटीग्रेटेड मेथड ऑफ ट्रीटमेंट. व्हाट इज एन इंटीग्रेटेड मेथड ऑफ ट्रीटमेंट? दैट आई विल एक्सप्लेन यू नाउ. सो नेचुरल मेथड्स ऑफ लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल. सो दिस इज द इंटीग्रेटेड मेथड. ओके, स्ट्रैटेजीज. फर्स्ट इज व्हाट यू हैव टू थिंक. फर्स्ट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड थ्रू डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी. ओके, ये क्यों करना है ये पहले समझ लो. हम लोग बॉडी को डिटॉक्स क्यों कर रहे हैं? अभी डिटॉक्स का और कोलेस्ट्रॉल का क्या संबंध है? व्हाई आर वी डिटॉक्सिफाइंग बॉडी? बिकॉज कोलेस्ट्रॉल is a substance. LDL, triglycerides, all these are substances which are causing injury to your cells. Okay, इनकी वजह से these are the saturated things, मतलब इनकी वजह से
बॉडी में टॉक्सिक फ्री रेडिकल्स जो है ना ये बहुत ज्यादा सर्कुलेट होते हैं. द फर्स्ट स्ट्रैटेजी शुड बी टू डिटॉक्स योर बॉडी. ओके, purification of blood through detoxification means you are trying to convert those toxins into less toxic substances. That is purification of blood. Now, what is second strategy? Natural foods to heal the injured cells. आपके जो ऑलरेडी इंजर्ड सेल्स है बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल, तो वो इंजुरी कहीं पे भी हो सकती है. एक सेल को भी इंजुरी हो सकती है या फिर ब्लड वेसल की वॉल को भी इंजुरी हो सकती है. एंड बोथ द थिंग्स आर डेंजरस. ओके, आप कभी है ना कभी भी मतलब किसी पेशेंट, इफ एनी पेशेंट विजिट्स टू यू एंड दे से कि कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ा हुआ है, यू टेल देम द सिम्टम्स. अपने आप या वो बोलेंगे हाँ ये भी होता है वो भी होता है. उसके सिम्टम्स क्या होते हैं ना, फर्स्ट इज माइल्जिया, बॉडी में बहुत ज्यादा पेन्स होना, बोन पेन्स हो सकते हैं या फिर मसल पेन हो सकते हैं. सेकेंड इज ब्रेथलेसनेस, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड विस्कोसिटी द ब्लड इज नॉट एबल टू फ्लो प्रॉपरली टू द लंग्स. ऑक्सीजन इंटेक जो है ना वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनको वो ब्रेथलेसनेस वाला फीलिंग आता है. सो इफ यू चेक एवरीथिंग इज ऑल नॉर्मल, मतलब उनका बीपी नॉर्मल है, उनका रेस्पिरेटरी एयर एक्सचेंज जो है, जो आवाज आती है, लंग्स की हेल्थ जो है, दैट इज ऑल नॉर्मल, एवरीथिंग इज नॉर्मल. देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड विस्कोसिटी वो जो ब्लड है प्रॉपरली टिश्यूज की ओर नहीं जा पा रहा है. ओके, समबडी इज अनम्यूट, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ओके, टिश्यूज की ओर नहीं जा पा रहा है, तो उसकी वजह से जो है ना ये मतलब सिम्टम्स इन लोगों में दिखते हैं. सो क्या होता है ना, हीलिंग ऑफ इंजर्ड सेल्स मतलब क्या कि इन टॉक्सिक रेडिकल्स की वजह से जो डैमेज होता है सेल्स को, ओके, बिकॉज ऑफ दैट डैमेज द पेशेंट इज नॉट एबल टू कोप अप विद द इंक्रीज डिमांड ऑफ वर्क. ठीक है, एंड वो सेल्स जो है ना वो इफेक्टिवली काम ना करने के कारण उनको वो पेन्स महसूस होते हैं. ओके, वंस यू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन एंड प्रोवाइड देम गुड अमाउंट ऑफ फूड, नेचुरल फूड्स, वो जो चीजें है ना ये मतलब उनके पेन्स, एक्स, ब्रेथलेसनेस ये सारा कम होना शुरू हो जाता है. दैट डज नॉट मीन कि उनका कोलेस्ट्रॉल अभी एबनॉर्मल, कोलेस्ट्रॉल एकदम से नॉर्मल पे आ गया, सिर्फ सिम्टम्स गए हैं. अभी स्टिल कोलेस्ट्रॉल इज देयर. नाउ अगेन वी नीड टू प्रोवाइड सम फूड्स दैट विल लोअर देयर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स. ओके, देन फूड्स फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी टिश्यूज, जो मैंने अभी आपको बोला कि इंजुरी, एक्चुअली थर्ड पॉइंट ये चाहिए कि द फूड्स दैट विल लोअर कोलेस्ट्रॉल. ओके, फोर्थ इज इंक्रीजिंग बॉडीज बीएमआर. नाउ बीएमआर क्यों बढ़ाना है? बिकॉज वी वांट द ब्लड टू फ्लो प्रॉपरली and supply oxygen to all the cells of our body. So that is why when we are trying to increase BMR जब बढ़ाना, हम लोग बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो ये जो लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनका लाइपोलाइसिस जो बोलते हैं जिसको हम लोग, तो वो प्रोसेस जो है ना वो एनहांस होती है. एंड देन पेशेंट इज टुवर्ड्स रिकवरी. ओके, देन एडॉप्शन ऑफ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस. ओके, सो स्ट्रेस पर मैं कभी डेफिनेटली आपका सेशन लूंगी. एडॉप्शन ऑफ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, व्हाई एडॉप्शन? ऐसे में अभी एडॉप्शन ऑफ हेल्दी ईटिंग पैटर्न्स, ये वर्ड मैंने यहाँ पे एडॉप्शन का क्यों वर्ड मैंने मेंशन किया है? द रीजन इज व्हेन वी ट्राई टू चेंज और व्हेन वी ट्राई टू ट्रीट अ पेशेंट थ्रू फूड्स, ओके, नेचुरल हीलिंग मेथड्स, एक बार वो चीज आ गई ना, मतलब व्हेन दे रिवर्स टू देयर नॉर्मल स्टेट, again they will try to resume their own diet and own eating patterns. तो वो नहीं होना चाहिए. So हम लोगों ने चेंजेस जो है डाइट में इस तरीके से चेंजेस लानी चाहिए कि that person shouldn't feel कि he is on dieting. That person shouldn't feel कि he is wasting too much of time in preparation of recipes and preparation of this and that. So in short and sweet way we have to try to treat that patient so that he adopts the change. Automatically he adapts the change that whatever we have told to the client. Managing stress is very important because stress has an impact on liver, stress has an impact on your heart, it has an impact on secretion of the stress hormones, endorphins जो है वो अगर excess में secrete हो गए, then also it has very different actions on body. For example, इंसुलिन को रेजिस्ट करना, ये होना,
तो ये सारी चीजें जो है स्ट्रेस की वजह से होती हैं कि जिससे बॉडी और भी डिटोरेट हो सकती है. सो दैट इज व्हाई अलोंग विद दीज थेरेपीज वी हैव टू ट्राई एंड मैनेज दैट पर्सन स्ट्रेस इन अ प्रॉपर वे. ओके, और उनको खुद को मेडिटेशन टेक्निक्स वो भी हम लोग रेकमेंड कर सकते हैं एंड दे कैन फॉलो देयर ओन मेथड्स ऑफ रिलीविंग स्ट्रेस. ओके, so let us come to foods. Now foods that will act as a blood purifying foods. Okay, now what are blood purifying foods? Now these are the nutrients, you can say, which are going to cleanse your body, okay, or convert those toxic substances into less toxic ones. Okay, so इनमें क्या आता है? इनमें ऐसे nutrients आएंगे, it can be vitamins, it can be minerals, or it can be the other antioxidants which are usually, सबसे मतलब इंडिया में जितने फूड्स लिए जाते हैं ना, वन सेकेंड ना, Indian diet ideally it contains good amount of antioxidants in their meals. Okay, but what is the problem? The method of cooking. The method of cooking is very very bad in India, कि जिसकी वजह से even though there is inclusion of lot many like natural food हम लोग बहुत ज्यादा डाइट में लेते हैं, लेकिन फिर भी पीपल लोगों की जो हेल्थ वो डिटोरेट होती जा रही है. तो सिर्फ वही हमें करेक्ट करना है, एंड दैट इज द सॉल्यूशन टू मैक्सिमम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स. ओके, फॉर एग्जांपल लेमन जूस, फ्रेशली स्क्वीज्ड लेमन, दैट नीड्स टू बी टेकन. बहुत देर तक स्क्वीज करके रखा है, फ्रिज में रखा है, टाइम नहीं मिलता है, या फिर यू नो मेनी पीपल आई हैव सीन वो जो लेमन को एक साथ, लाइक लेमन अगर चीप हो गए, लाइक सस्ते में मिल रहे हैं ना लेमन, तो दे विल स्क्वीज इट एंड कीप इट इन बॉटल. ठीक है, और वो फ्रिज में रख देंगे, और फिर जब वो महंगे हो जाते हैं लेमन्स, तो देन दैट जूस इज बीइंग यूटिलाइज्ड. डू यू थिंक दैट जूस विल हैव दैट इफेक्टिव डिटॉक्सिफाइंग एबिलिटी एज अ फ्रेश लेमन? इससे अच्छा तो जो आप एक लेमन कंज्यूम कर रहे हो ना, उसे 1/4 लेमन कंज्यूम करो, लेकिन टेक इट इन अ फ्रेश फॉर्म. ओके, सो ये जो है ना मेथड ऑफ कंजम्पशन ऑफ फूड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Lemon, it is acting as a detergent to our gastrointestinal system. Detergent क्यों मैं बोल रही हूँ? क्योंकि it is flushing out toxins from our the acid part of that lemon. It is flushing out toxins from our gastrointestinal system, as well as vitamin C जो है lemon में, वो एक बार absorb हो गया तो it enhances absorption of many minerals. उसमें आयन आता है जो सबको पता है, and जब वो blood में चला जाता है तो उसमें भी विटामिन सी का रोल एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज कराने में रहता है. सो जो इन्फ्लेमेशन बढ़ी हुई इनकी वजह से है, बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड्स एलडीएल की वजह से है, तो वो इन्फ्लेमेशन कर्ब करने में लेमन बहुत ज्यादा यूजफुल है. सो अभी लेमन को देना कैसे है? ठीक है, आइडियली इट शुड बी व्हेन इट इज कट, हाफ द लेमन शुड बी कंज्यूम्ड एट वन टाइम. ओके, दूसरे लेमन को कीप इट इन अ कवर्ड कंटेनर, और यू कैन कीप द कट साइड फ्लैट सरफेस पे, कट साइड ऑफ लेमन इट शुड बी पुट इन दैट वे, सो दैट वो ओपन सरफेस रह के ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन सी डज नॉट हैपन. ठीक है, तो वो उस तरीके से रखकर भी लिया जा सकता है. या फिर द सेकेंड मेथड इज लेमन के स्लाइसेस पानी में डाल के रखो एंड दिन भर वो पानी पीते जाओ. दैट विल ऑल्सो हैव अ गुड डिटॉक्सिफाइंग इफेक्ट ऑन बॉडी. ओके, second is garlic. Everybody knows garlic has a real good effect on body, but provided it is consumed in a raw form. Okay, raw garlic clove in a day will help prevent cholesterol, increasing cholesterol levels. ये नॉर्मल लोगों के लिए है. अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, okay, then they should take every day, ideally they should be taking on empty stomach, they should be taking 1 to 2 cloves of garlic without fail. ओके, तो गार्लिक अभी किसी में आपने ऐड कर दिया, उसकी चटनी बना के रख दी, फिर वो खा लिया. many of these foods, no, they contain some potential antioxidants. ठीक है, potential enzymes कि जो इस इन हीलिंग प्रोसेस में हेल्प होने वाले हैं. सो गार्लिक में भी एल्यूसिन करके एक एंजाइम होती है. ओके, इसका नाम याद रहे नहीं तो छोड़ दो, लेकिन ये चीज याद रखो कि कुछ तो एंजाइम है कि जो फ्रेश गार्लिक लेने की वजह से हमारे बॉडी में एक्टिवेटेड रहती है. ओके,
क्योंकि दिस एंजाइम इट इज अ प्रिकर्सर ऑफ मेनी एंजाइम्स इन आवर बॉडी। जो एंजाइम लाइपोलिसिस की प्रोसेस में, लाइपोलिसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, इस प्रोसेस में जो काम करती है, उस एंजाइम को हेल्प करने के लिए ये एलोसिन एंजाइम रहती है। ओके, सो अगर वो नाउ इफ द गार्लिक इज पुट इनटू, जैसे हम लोग तड़का देते हैं, सो इफ द गार्लिक इज पुट इनटू ऑयल, तो क्या हो जाएगा, ये एलोसिन एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाएगी, बिकॉज ऑल एंजाइम्स दे आर प्रोटीन इन नेचर। तो प्रोटीन्स जो है ना, ये हीट में डालने से वो डीनेचर हो जाते हैं, मतलब उनके इनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है ना वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो चेंज होने के कारण फिर वो उसका उस तरीके से इफेक्ट नहीं आता है, मतलब वो एंजाइम अभी डीनेचर हो गए। अभी दैट गार्लिक डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम विच इज हेल्पफुल फॉर लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल। इसलिए अगर चटनी बना रहे हो, उसको फ्राई कर रहे हो तवे पे, या फिर बहुत ज्यादा गार्लिक अभी डॉक्टर्स ने बोला है तो वो गार्लिक अपने तवे में डालकर उसको सेक के, यू नो, डिफरेंट रेसिपीज पीपल मेक, बट दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल। Eating 1 to 2 cloves of garlic every day on empty stomach. Okay, now cinnamon it increases BMR. It also has an antioxidative properties that helps in lowering cholesterol levels. So these are some of the foods which you can see on the screen. Like cardamom is also good for heart health. Cloves again is going to increase BMR. Anti-inflammatory properties बहुत ज़्यादा होती है cloves में, ठीक है। स्पिरुलिना, नाउ क्लोव्स में ना ये एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रहती कहाँ पे है? सो क्लोव्स का एक्टिव मेटाबोलाइट जो है, इट इज प्रेजेंट इन ऑयल। क्लोव्स में ऑयल रहता है, पता है ना सबको? यस, सिनेमन में भी ऑयल्स रहते हैं, बट दीज ऑयल्स इफ यू सी इन मार्केट आर वेरी वेरी कॉस्टली, बहुत ज्यादा कॉस्टली आते हैं, बिकॉज इनका जो एक्टिव मेटाबोलाइट है सिनेमन का क्लोव्स का, दैट इज देयर इन दोज ऑयल्स। ओके, so ideally cinnamon and cloves they should be like in their natural form. जो हमें मार्केट में मिलते हैं ना cloves and cinnamon, that is in a dried form. उसका सारा ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्ट किया हुआ हमें जो बाकी मिलता है, that is a spice. Okay, उसमें थोड़ा बहुत वो एक्टिव मेटाबोलाइट्स रहेंगे, बट लाइक अ प्रॉपर टू गेट दोज एक्टिव मेटाबोलाइट्स इन अ प्रॉपर प्रोपोर्शंस। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना सिनेमन की वजह से वेट लॉस होता है, क्लोव्स भी लिया जाए डाइट में तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज उसकी अच्छी हैं। तो ये प्रॉपर्टीज इनके ये वाले बेनिफिट्स हमें मिलने के लिए दे शुड बी कंज्यूम्ड इन अ प्रॉपर नेचुरल फॉर्म, जिससे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया हुआ नहीं है। ओके, इफ यू सी इफ यू टेक अ क्लव एंड उसको अगर पिंच करोगे ना, जो क्लव में ऑयल नेचुरल ऑयल्स रहेंगे तो उससे ना ऑयल लिटरली एक्सट्रैक्ट होता है, वो ऑयल बाहर निकलता है। And the cloves which are dried and you know the oils they have been removed, उन cloves में कोई oil नहीं निकलता है, जो when you squeeze it it is just a dry form of clove. Okay, so वो चीज है। spirulina, again spirulina contains lot of minerals and it has antioxidative properties which is helping to lower cholesterols. Okay, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है स्पिरुलिना कम करता है, जिसकी वजह से effective utilization of glucose it happens. Okay, so these are like metabolically this is helping your body. Then green tea again, जैसे cinnamon का cloves के benefits है, वैसे ही green tea के benefits हैं। Then certain dark chocolates they are containing caffeine, so these it is also acting as a blood purifier, you can say, and has a lot of antioxidative and anti-inflammatory properties. Extra virgin olive oil. Now olive oil, this olive oil it actually contains omega-3 fats which are essential to our body. Okay, so अगर आप मतलब olive if you buy a olive oil from the market, any oil you buy and you read the food label, तो वो फूड लेबल पे आप ये देखोगे कि उसमें बहुत ज्यादा ऐसे ऑयल्स हैं विच आर नॉट नीडेड बाय आवर बॉडी, लाइक सैचुरेटेड फैट्स बहुत ज्यादा रहते हैं, और उसमें कम अमाउंट क्वांटिटीज में अनसैचुरेटेड फैट्स रहते हैं। जैसे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में यू गेट मोर ऑफ unsaturated fats than saturated fats. Okay, and this oil is very very costly. Again omega 3 and polyunsaturated fats जो है वो रहने के कारण
एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज ये बॉडी को मतलब इट गेट्स हैज दैट एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, जिसकी वजह से हीलिंग जो है वो प्रॉपर हो जाता है एंड जो कोलेस्ट्रॉल या फिर ट्राइग्लिसराइड कम होने की प्रोसेस है वो फास्ट हो जाती है, बिकॉज बॉडी इज नॉट एनी मोर गेटिंग cholesterol or high amounts of triglycerides through the other foods. Okay, so these are the blood purifiers through diet. Then foods to heal the injured cells. Now what we need to provide to our body in order to heal, that healing process it begins. So it's like the high fiber diet. So the more high fiber diet you include, the more cholesterol is going to reduce. Okay, so जितना लाइक ओट्स, इसीलिए ओट्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है कि जब कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ा हुआ है, डायबिटिक पीपल या फिर लीवर एलिमेंट कोई है किसी पेशेंट में, हाइपरटेंशन है, तो व्हाई ओट्स इज बीइंग प्रेफर्ड, बिकॉज इट इज कंटेनिंग soluble as well as insoluble fibers. So these fibers are helping to maintain gut microbiota also, and it is helping to flush out the toxins from the gastrointestinal system. So वैसे ही बाकी के भी vegetables है and some fruits which contain good amount of fibers, so they need to be included in diet. Okay, so उसमें apples है, okra is bhendi, then avocado, fish, again fish and nuts and oil seeds, they contain omega-3 fats which are acting as anti-inflammatory. They also help in reducing triglycerides in our body. Then oats and barley, they contain soluble fibers which are again helpful. Then you have soya foods that contain phytoestrogens and they have anti-oxidative properties. Okay, soya foods. So that is again helping in reducing cholesterol. And green leafy vegetables. So all these foods, they need to be included in people's diet. Okay. So अगर ऑयल यूज करना है तो यूज ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, लाइक कोई किसी का ग्रेड 2 फैटी लिवर है एंड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, सो 100% यू हैव टू रिकमेंड एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल. अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है क्लाइंट्स, बिकॉज 90% क्लाइंट्स दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इन देयर डाइट, ask them to add very little bit amount of oil, the normal cooking oil जो यूज किया जाता है, and switch their diet to a natural diet more, कि जिसमें लाइक मेथड ऑफ कुकिंग में ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं होती है. ओके, then foods for repair and maintenance of healthy tissues, and also these are the satiety giving foods. So these foods are if you see all non-vegetarian foods, they contain good amount of proteins. If the person is vegetarian, then curd, buttermilk, soya foods, these are the main sources which can be recommended for people who have increased cholesterol levels. Okay, then fourth is increasing in BMR. So BMR can be increased through diet or through exercises. So in diet, coffee, high protein diet, cinnamon, green tea, flax seeds, these are some foods which are going to increase BMR. And the exercise will cause secretion of endorphins, कि जिसकी वजह से उनका BMR जो है वो बढ़ सकता है. So when you are planning a diet for a cholesterol, for an increased in cholesterol, like blood cholesterol levels जिनका बढ़ गया है, so एक ही एस्पेक्ट पे फोकस नहीं करना है आपको. ओके, मतलब आपको डिटॉक्स करना है बॉडी, तो हाँ, सिनेमन गूगल पे है कि सिनेमन इट हेल्प्स इन लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, या ओट्स इट हेल्प्स इन लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल. ओके, तो आपने सिनेमन और ओट्स ऐड किया और बाकी का छोड़ दिया, अभी इससे कम हो जाएगा. इट विल नॉट हैपन दैट वे. यू हैव टू प्लान दीज 4 स्ट्रेटेजीज प्रॉपरली. ठीक है, 4 to 5. द 5th वन इज स्ट्रेस मैनेजमेंट. सो ये जो स्ट्रेटेजीज है ये 100% आपको इसी तरीके से फॉलो करनी है. उनके डाइट में ये फूड्स, either one of these foods, they has to be included in their diet. Like for example, increasing in BMR, तो उसमें ideally either black coffee या फिर high protein diet या green tea, ये आपके मील प्लान में होना ही चाहिए. ओके, अगर आप ये सोच रहे हो कि हाई फाइबर डाइट से उनका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, सो दैट इज करने के लिए उनके डाइट में प्रोटीन्स रहना जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन्स जो है ये पोस्ट प्रैंडियल थर्मोजेनेसिस, अगर आपने सुना होगा, तो इट कॉजेस दैट
कि जिसकी वजह से बीएमआर जो है वो बढ़ता है, एंड बड़े हुए की वजह से ये लाइपोलिसिस की प्रोसेस है, लिपिड ब्रेकडाउन होने की प्रोसेस है, वो एनहांस होती है, वो फास्ट हो जाती है। सिमिलर विद द फ्लैक्सीड्स, तो अभी फ्लैक्सीड्स में अगेन कितनी क्वांटिटी में फ्लैक्सीड्स आप ऐड करोगे, सो इट इज 10 to 15 ग्राम ऑफ फ्लैक्सीड्स एवरी डे दे नीड टू बी एडेड। फिर आप सी फ्लैक्सीड्स में भी फैट्स हैं, सो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये फैट्स बॉडी के लिए हार्म करने वाले हैं। दे आर ओमेगा 3 फैट्स विच आर गोइंग टू हेल्प दैट पेशेंट डिटॉक्सिफाई देयर लिवर, ठीक है, उसमें सॉल्युबल फाइबर्स भी है, तो वो भी उनको मिलने वाले हैं। इंस्टेड यू कैन डिक्रीज द इंटेक ऑफ एडेड ऑयल्स, ठीक है, फ्लैक्सीड्स ऐड करो, एडेड ऑयल्स, एंड ऑब्वियसली दिस इज लाइक अ कैलकुलेशन वी हैव टू डू, एनर्जी कैलकुलेशंस, एंड फिर उसके बाद में आप कर सकते हो ये। लेकिन ये चीजें जो है ये आपको 100% जो है वो फॉलो करनी है। फिफ्थ इज एडॉप्शन ऑफ हेल्दी ईटिंग पैटर्न एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। सो जैसे मैंने आपको बोला कि एडॉप्शन ऑफ हेल्दी ईटिंग पैटर्न मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि पेशेंट शुड नॉट फील या क्लाइंट शुड नॉट फील कि वो कुछ अलग कर रहे हैं, ठीक है, उनके ही डाइट में, उनके ही लाइफस्टाइल में जो चेंजेस, मैक्सिमम चेंजेस हम अच्छे करवा सकते हैं वो चीजें हमें करवानी है। लाइक फॉर एग्जांपल लेट्यूस, ओके, लेट्यूस आपने कैबेज जैसे दिखता है, इट इज अ काइंड ऑफ सैलेड कि जो मैकडी के बर्गर्स में आपको डला हुआ दिखेगा, इट इज इन वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी इन दोस बर्गर्स। लेकिन वही लेट्यूस अगर है ना ज्यादा क्वांटिटी में खाया जाता है तो इट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, इट इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी वेजिटेबल्स में। तो उसका अगर ये लेट्यूस आप ऐसे किसी पर्सन को बोल दोगे कि हु इज नॉट एबल टू इवन, मतलब उसने कभी लेट्यूस देखा ही नहीं है, तो दैट उसके लिए वो बहुत अनोखी चीज है, अभी वो नहीं है, वो अपनी लाइफस्टाइल इस तरीके से अडॉप्ट तो नहीं कर पाएगा, राइट। तो उसे हमें क्या प्लान करना है ये हमें डिसाइड करना है। अगर कोई सिटी में रहता है, मॉल्स एंड एवरीथिंग इज वेरी वेरी एक्सेसिबल, इफ यू प्लान लेट्यूस, इफ यू प्लान ओट्स मील फॉर देम, then it is okay, like berries, strawberries, everything is like many of these foods they are helping to lower cholesterol। लेकिन हमें जो है वो स्ट्रैटेजिकली प्लान करना है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है और हम उनको उनके लिए क्या प्लान कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल स्मूदीज भी है, like there are lot many smoothies we can plan, and smoothie is like a food which उसका एब्जॉर्प्शन जो है, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मूदीज में होता है, अगर फूड्स को स्मूदी के फॉर्म में लिया जाता है तो। बट सम पीपल आर नॉट लाइकिंग स्मूदीज, तो उनके लिए स्मूदीज हम बना के कोई फायदा नहीं है, तो उनको ऐसे फूड्स हमें बनाने, उनको ऐसे मील्स हमें बताने हैं कि जो उनके लिए कॉम्पेटिबल है, ओके, सो दैट विल लीड टू एडॉप्शन ऑफ हेल्दी ईटिंग पैटर्न। एंड the last but not the least is the stress management, because stress can have hormonal imbalance in body, thereafter increasing cholesterol levels in body and deteriorating health to a great extent. So stress management is again very very important in lowering cholesterol levels, okay. So this was about the cholesterol. So if increased cholesterol is a metabolic disorder, so the correct treatment through natural means will include knowing the cause. The first thing is the cause, वो मीठा खाने की वजह से बढ़ा है या ऑयली फूड्स खाने की वजह से बढ़ा है, ठीक है। सो नोइंग द कॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नॉलेज ऑफ फूड्स एंड इट्स एप्लीकेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको लेट्यूस का बोला, जैसे लेमन का बोला, ये थोड़े एग्जाम्पल्स है कि जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए, लेकिन ये अगर आपको पता चल जाता है कि कौन से क्लाइंट में कौन सी चीज किस फॉर्म में देनी है, तब जाके these remedies, these natural means through foods, they will be working as medicines, ये मेडिसिन की तरह काम करते हैं, okay। So this was for today, so thank you very much, and yes, इसका मैंने अच्छा हाँ स्टैटिस्टिक्स डाला था। कोलेस्ट्रॉल जो है ना, जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि इसका इतना रैपिड राइज है सोसाइटी में। अगर आप every 10 people, if you see the blood cholesterol levels of randomly 10 people, हाँ, ऐसा नहीं कि कोई ग्रुप एक्सरसाइज करना है उनका देख रहे हो, randomly 10 people you pick from any society and you pick from any locality, at least 3 people will have increased cholesterol। उसका कोई एक तो पैरामीटर उनका बढ़ा हुआ रहेगा, एंड उसके जो इफेक्ट्स है बॉडी पर
वो तो अलग ही है, मतलब these people are going to experience their effects in just coming few years, लेकिन वो जो effects है they are very very deleterious to their health. So ये जो increase in cholesterol उसकी वजह से बहुत बड़ा क्राउड है कि जिन लोगों को सिर्फ आप मतलब अर्निंग पर्पस से मत देखो, बट यू आर ऑल्सो लुकिंग टू इट एज हेल्पिंग पीपल इन कर्बिंग देयर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स. ओके, और ये बहुत सारे लोग हैं, एंड बिलीव इट और नॉट, आजकल 15 इयर्स के बच्चे हु आर ओबीज उनका भी लिपिड प्रोफाइल किया जाता है. ठीक है, सो दिस इज अ रूटीन चेकअप आफ्टर एवरी, लाइक 15 इयर्स के बच्चों से लेकर इट इज बीइंग डन टिल 60 इयर्स. पहले 60 इयर्स तक तो कोलेस्ट्रॉल देखा भी नहीं जाता था, कोई सिम्टम्स दिखने के बाद में फैट प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल किया जाता था. बट नाउअडेज इट इज बिकमिंग अ वेरी हाई रिस्क फैक्टर. जब से ये कम एज में लोगों को हार्ट अटैक्स होना शुरू हो गया, इवन डॉक्टर्स डाइंग बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक. तो ऑल दीज फैक्टर्स आर वेरी वेरी कॉन्ट्रीब्यूटरी. हमारा डाइट जो है ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है इन मेंटेनिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन बॉडी. ओके, सो दिस वाज अबाउट दिस थिंग. सो जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आपको ब्लड रिपोर्ट्स पढ़ना आना चाहिए. You should know which parameter is the effect of what kind of lifestyle. इस तरीके के लाइफस्टाइल की वजह से ब्लड में ये स्पेसिफिक पैरामीटर्स उस पेशेंट के बढ़े हुए हैं. ओके, एंड इसमें सबसे ज्यादा बून किसका हो रहा है, तो जो लोग लैबोरेटरीज जिनकी हैं वो लोग दे आर गेटिंग बेनिफिटेड, डॉक्टर्स आर गेटिंग बेनिफिटेड, क्योंकि देयर इज नो अदर सोल्यूशन. एक क्लाइंट उनसे जुड़ जाता है ना, लाइफ टाइम दैट क्लाइंट इज गोइंग टू विजिट देयर क्लिनिक, राइट. तो ये जो बूमिंग इंडस्ट्री है ना, लेट अस टेक दिस इंडस्ट्री इन आवर हैंड्स, क्योंकि देयर इज नो नेचुरल अदर रेमेडी देन इंक्लूजन ऑफ हेल्दी फूड्स इन डाइट देन एनी अदर थिंग. अदरवाइज केमिकल्स ले लो और कोलेस्ट्रॉल कम करने की कोशिश करो, दैट इज कोशिश ही होती है, वो सिर्फ उसको रिजल्ट नहीं आता है, परमानेंट रिजल्ट नहीं आता है. ओके, सो दिस वाज द टुडेज टॉपिक. ओके, so any queries, any questions anyone has, please let me know. हाँ मैम, इसमें एक्सरसाइज क्या रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि हाँ ठीक है, क्योंकि अभी देखिए जैसे अभी कोलेस्ट्रॉल पेशेंट है, अभी तो हार्ट अटैक के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं इनमें भी, तो हम एक्सरसाइज में क्या रिकमेंड कर सकते हैं पेशेंट को. One second ना, let me stop sharing the slide. ये एक ही मिनट से. ओके, हाँ अभी बताइए. यस, एक्सरसाइज में क्या, हाँ एक्सरसाइजेस में किस में, हाँ ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सरसाइजेस का, अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, ओके, एंड यू टेल देम कार्डियो एक्सरसाइजेस, दैट पर्सन कैन लिटरली कोलैप्स. ठीक है, वो कोलैप्स हो सकता है पेशेंट. उनको स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइजेस रेकमेंड करना जरूरी है. इनिशियल माइल्ड एक्सरसाइजेस एंड देन हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस. इमीडिएटली अगर हाई इंटेंसिटी वाले शुरू कर दिए, इवन इफ दैट पेशेंट इज एबल टू डू नॉट रिकमेंड टू दोज पीपल, बिकॉज वही मैं बोल रही हूँ, ब्लड की विस्कोसिटी ज्यादा है, हार्ट कैन कोलैप्स. अगर बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड एक्सरसाइजेस बोले जाते हैं तो इनिशियली, जैसे ही बॉडी गेट्स अडेप्टेड, जैसे उनके मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, then high intensity exercises you can take. Any cardio exercise will help in reducing cholesterol. Okay, because cholesterol is there in blood. आपकी एडिपोसिटी की नहीं बात हो रही है यहाँ पे, ब्लड में जो फैट्स है उसकी बात हो रही है. एक सेकेंड, ब्लड में जो फैट्स है ना उसकी बात हो रही है. सो उसको कम करने के लिए कार्डियो एक्सरसाइजेस विल हेल्प मोर देन दी वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस, या फिर जो मसल के लिए एक्सरसाइजेस होते हैं वो. ओके, यस, क्या है, पर्सन हैज हाई एलडीएल. एक मिनट, वन सेकेंड, आप बोल सकते हो. यस, हरी सर. हाँ हेलो जी मैम. हेलो, हाँ बोलिए हरी सर. यस जी मुझे थोड़ा और मतलब और थोड़ा बताइए, ये एलडीएल और एचडीएल वो कैसे बनता है, मतलब जैसे कि ट्राइग्लिसराइड हम बेकरी फूड और जैसे कि चीनी खाने से होता है, तो ये थोड़ा दोबारा बताइए. ये लाइपोप्रोटीन्स है. अभी इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा साइंस है.
आइडियली लिपिड्स एंड प्रोटीन एक साथ आकर ये बड़े मॉलिक्यूलर साइज का मॉलिक्यूल बनता है कि जिसको लाइपोप्रोटीन बोला जाता है। उसमें प्रोटीन भी मॉलिक्यूल रहता है। प्रोटीन क्यों उसको अटैच होता है? क्योंकि फैट्स हमारे बॉडी में मिक्स नहीं हो सकते ना ब्लड में। ब्लड इज वाटरी इन नेचर, तो उसमें फैट्स मिक्स नहीं हो सकते हैं। तो उनको मिक्स कराने के लिए एंड उनको लाइक प्रॉपरली उनका फ्लो होने के लिए प्रोटीन्स को अटैच किया जाता है, सो दैट इट बिकम्स हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब कि अभी वो वाटर में फ्लो हो सकता है, ब्लड में फ्लो हो सकता है। ठीक है, सो लिपिड्स एंड प्रोटीन, okay, they are coming together to form lipoproteins. So low density lipoprotein and high density lipoprotein. So high density lipoprotein में प्रोटीन का मॉलिक्यूल बड़ा रहेगा, लिपिड्स वाला कम रहेगा। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में प्रोटीन का मॉलिक्यूल कम रहेगा, लिपिड्स वाला ज्यादा रहेगा। इसीलिए LDL is bad for body. Okay? जी Yes. Any more questions? मैम लिपिड प्रोफाइल खराब है या ट्राइग्लिसराइड या अगर ये ऊपर नीचे है तो यूरिक एसिड भी इससे इफेक्ट होता है कि यूरिक एसिड इज समथिंग एल्स? No, uric acid is related to protein metabolism. ठीक है, प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट है यूरिक एसिड। तो बट Okay. अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल है और यूरिक नहीं, एसिड भी बढ़ा उसका हुआ कोई है रिलेशन नहीं, तो वो दोनों मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है। यूरिक एसिड का प्रोटीन से संबंधित है। ठीक है, एंड यूरिक एसिड के अभी हम लोग कभी बात करेंगे। यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो इसका मतलब प्रोटीन्स डाइट में कम लेना है एंड वाटर इनटेक बढ़ाना है। दैट मींस किडनीज आर नॉट इफेक्टिवली एबल टू थ्रो आउट यूरिक एसिड, तो उसकी वो पैथोलॉजी है गाउट में। और कोलेस्ट्रॉल की इट इज रिलेटेड टू लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। यूरिक एसिड का लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट से कोई संबंध नहीं है। ओके ओके, यस मैम। मैम एक क्वेश्चन था। हेलो मैम। हेलो, वन सेकेंड ना, यहाँ पे कोई क्वेरी आई है। पर्सन हैज हाई हाँ सी नाउ द पर्सन हैज हाई कोलेस्ट्रॉल, LDL लेवल्स उसके ज्यादा है, उसका ट्राइग्लिसराइड्स भी ज्यादा रहेगा। ठीक है, एंड ही इज स्मोकिंग, टोबैको चूइंग है एंड ही इज नॉट एबल टू क्विट। नाउ यू हैव टू पुट अ क्वेरी इन फ्रंट ऑफ दैट पेशेंट ओनली। you want your life or you want your smoking? ठीक है, आपको जिंदगी प्यारी है या स्मोकिंग प्यारा है? पर्सन हिमसेल्फ विल ट्राई टू क्विट स्मोकिंग। वहां पे हमें कुछ नहीं करना है, बिकॉज इट इज द मॉडिफिकेशन। हम कितना भी बताएंगे आखिर में फॉलो तो उसको करना है ना, तो हमें उसको उस तरीके से थोड़ा बताना है। यू हैव टू शो द अदर साइड ऑफ द हैंड ऑल्सो। वाइट साइड तो हम लोग हमेशा बताते हैं कि चलो इससे कम हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा, लेकिन अगर आप टोबैको खा रहे हो तो उससे कुछ नहीं कम होगा। एंड द एंड रिजल्ट इज दिस यू हैव टू टेल देम, तब वो फॉलो करेंगे। एंड करते हैं, मैक्सिमम लोग करते हैं। और अगर नहीं भी करेंगे ना तो 2-3-4 साल के बाद में उनको कुछ हेल्थ गड़बड़ हो जाएगी, मेजर गड़बड़ हो जाएगी, उनकी लाइफ में आ जाएगी, तब वो हेल्थ से रिलेटेड, तब वो क्विट करते हैं। ठीक है मैम। मैम हेलो मैम। सोया फूड्स थोडं सांगा ना। सारिका, येस। सोया फूड्स म्हणजे काय देऊ शकतो आपण? सोया फूड्स में यू कैन गिव एनीथिंग, बिकॉज सोया फूड्स लाइक सोया चंक्स है, उसमें प्रोटीन ज्यादा है। सोया टोफू एंड सोया मिल्क है, उसमें फाइटोएस्ट्रोजन ज्यादा है। सोया के ग्रेन्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट मेल पेशेंट्स, मेल क्लाइंट्स को ज्यादा सोया आइडियली नहीं देना चाहिए। सो ये फीमेल के लिए हो जाएगा। सोया फूड्स मेल के लिए हम लोग ज्यादा रेकमेंड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दैट हार्मोनल इफेक्ट। ठीक है, सो ये सारी चीजें यू कैन इंक्लूड। इसकी रेसिपीज आप यूट्यूब पे देखकर तो आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। ओके, यस, थैंक यू मैम। हेलो यस, यस। मैम, सोया चंक्स के बारे में जो फैक्ट है कि हाँ एस्ट्रोजन लेवल हाई कर देता है, तो वो कितना ट्रूथ है? वो ट्रूथ इसलिए है क्योंकि उसमें जो फाइटोएस्ट्रोजेंस है, दे हैव एस्ट्रोजन लाइक प्रॉपर्टीज। एग्जैक्टली वो एस्ट्रोजन नहीं है, लेकिन एस्ट्रोजन जैसी प्रॉपर्टीज है। सो इट इज Okay. वो एक्टिंग एज अ फीमेल हार्मोन, तो इसीलिए मेल्स में वो नहीं देना चाहिए। ओके, यस। एनी मोर क्वेश्चंस? मैम हेलो 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 हाँ, यस। हेलो मैम, अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो क्या हम गार्लिक एंड
लेमन एंड ग्रीन टी से स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ, यू कैन स्टार्ट, यस, डिटॉक्सिफिकेशन शुरू कर दो पहले, इंक्लूजन ऑफ अदर फूड्स, एंड बाकी के फूड्स को रोकना है, बाकी मतलब बाहर के फूड्स को, जैसे मैंने अभी आपको एनलिस्ट किया, बेकरी आइटम्स, ये साथ में आप करोगे ना, तब उसका रिजल्ट आएगा। नहीं तो बेकरी आइटम्स खा रहा है, यहाँ पे ग्रीन टी भी ले रहा है क्लाइंट, तो फिर इस सिनेरियो में वो हमारा डाइट जो है ना वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा, बिकॉज यू नीड टू गिव दैट द बॉडी रेस्ट पीरियड, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो अपना काम तो ठीक से करे, एंटीऑक्सीडेंट्स तो अपना काम ठीक से करे, राइट। थैंक यू मैम। यस, सो इट वाज नाइस मीटिंग यू ऑल अगेन दिस संडे। हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा संडे को, नेक्स्ट संडे, सो वी विल बी कमिंग अप विथ अगेन अनदर टॉपिक, एंड जिसको डिप्लोमा के बारे में इंक्वायरीज करनी है उसको मैंने दूसरा नंबर जो मैंने ग्रुप पे डाला था, so you can message me on that number, okay? Yes, so have a nice weekend everyone, see you all next Sunday, okay? Chalo, bye everyone, bye bye, take care, bye. Thank you ma'am. Thank you Thank you, ma'am.